So hello student, welcome back to my channel Maths Corner, and today we're gonna start with another chapter of class 10, that is polynomials chapter 2. In earlier classes we already completed number series, and from today onward we're gonna see the polynomials. And before starting this chapter we need to understand some terms. वो terms को understand करने के बाद ही हम लोग polynomials ये topic को या chapter को समझ पाएंगे. Okay. सो ये जो दो टॉपिक है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये हम लोग 6, 7, 8 तक इसके बारे में वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस. तो वो चीज़ को हमको पता होना चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल्स, बिकॉज दिस थिंग विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल्स. ओके, सो वेरिएबल्स मीन्स व्हाट? x, y, z, t, a, etc. These are variables, and constant means some numbers are there. These are my constant. What is the difference between variables and constant is that variables are changeable, vary करता है, it's not same. If I write x minus 2 equals to 0, x value will be 2. If I write x minus 4 equals to 0, so my value will be 4. And in first case I'm getting a value of x equals to 2. In the another case I'm getting a value of x equals to 4. एक में 2, एक में 4 मिल रहा है, राइट? सो वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट ना, चेंज हो रहा है. x के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, z के वैल्यू कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरिएबल, राइट. वेराज कांस्टेंट मीन्स, ये कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट है. -2 मीन्स -2 ही है, 6 का मतलब 6 ही है, पाई का मतलब पाई है. इट विल नॉट चेंज, फ्लक्चुएट नहीं होगा. पाई के बजाय 3.14, इट विल नॉट चेंज. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ वेरिएबल. ठीक है. सो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट now another topic that is that will come is like algebraic expression. Okay, so another topic is algebraic expression. ये algebraic expression जो होगा is actually made formed with variables and constant. जो algebraic expression होगा that is made with variables and constant, with some operations are there. With those operations the algebraic expression is formed with variables and constant. For example के लिए 2x plus 3y minus 6 is a algebraic expression. Root x plus 2x minus plus 5, algebraic expression. 1/2 y inverse plus 2x is an algebraic expression, right? So see, all of these are the algebraic expression. I'm gonna write few more. X square plus 2x plus 5, 3xy plus 2y plus 4x plus 3. See, all of these are algebraic expressions क्योंकि here we have terms add होके एक expression बना रहा है. This is term 1, this another term and another term. See how here we have 3 terms ना, 3 terms मिलके एक expression बन रहा है. इसको हम algebraic expression बोलते हैं. इसमें वेरिएबल्स भी है, इसमें कांस्टेंट भी है. तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट मिलके हमारा एक algebraic expression बन रहा है. ठीक है. algebraic expression वेरिएबल से भी बनता है, कांस्टेंट से भी बनता है, ओनली वेरिएबल से भी बनता है, या वेरिएबल एंड कांस्टेंट से भी बनता है. यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर भी मेरा एक वेरिएबल है, लाइक 6 भी, सॉरी एक्स स्क्वायर भी एक algebraic एक्सप्रेशन है, 6 भी मेरा क्या है, एक algebraic एक्सप्रेशन है. पर फर्स्ट algebraic एक्सप्रेशन में हाउ मेनी terms we have 3 terms, this 1, 2 and 3. here we how many terms are there? here we have 3 terms. तो ये एक्सप्रेशन बनने के लिए here we have 3 terms, here we have 2 terms, here we have 3 terms, here we have 4 terms, and here 1 and 1. so see, terms ही ऐड होके सबट्रैक्ट होके ये मल्टीप्लाई होके इस तरह से मेरा एक algebraic एक्सप्रेशन बन रहा है. ओके. सो अब यही एक्सप्रेशन से हम समझेंगे पॉलिनोमियल. सो हम लोग ने algebraic एक्सप्रेशन क्यों पढ़ा?
The topic was polynomials, but why did I explain to you about algebraic expression? Because polynomial is also a special form of algebraic expression. Okay, polynomial भी क्या है? Is a special form of algebraic expression. पर polynomial there is some criteria. There's one criteria that need to be fulfilled. Is a special form of algebraic expression पर variables के ऊपर जो power होगा is whole number. Variables के ऊपर जो power होगा that has to be whole number. It should not be fraction. X 1 by 2, no, it's not variable. Root x, it's not variable. X 0.5 is not variable. Okay, yeah, x minus 1 by 2 is not variable. So in order to have a variable, sorry, it's not a polynomial. All of these are not polynomial. So in order to be a polynomial, power should be like this, power should be like this, power should be like this. It should not be fraction, it should not be a root, it should not be a point, it should not be negative. So if you find expression with this, so that is not a polynomial, that's just an algebraic expression, nothing more than that. I believe आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ. Okay, so we come to understand what is polynomial. So इसमें आप बोलिए which of the following are polynomials. Is it a polynomial? Is it a polynomial? Obviously it is a polynomial क्योंकि हर एक की सिर्फ पावर 1 है. Is it a polynomial? No, it is not a polynomial because here we have a root. Is it a polynomial? No. Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial. Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial. Okay, so जो polynomials होता है वो polynomials आपका polynomials in one variable भी होगा, टू वेरिएबल्स भी होता है, थ्री वेरिएबल्स भी होता है. अगर मैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल लिखता हूँ तो पोलिनोमियल्स इन एक्स होगा. इसका जो एक्सप्रेशन भी आएगा दैट्स वी ऑल्सो विल बी ऑफ वन वेरिएबल एक्सप्रेशन. If I'm telling the two variables, that means उस टाइम में x y. If another variable is y, so it will come like this 9. If it is a three variables, that time it will come like this, and expression will have in that way. So this is how polynomials in one variable, two variable, and three variable. And in class 9 you having only polynomials in one variables only. So when you reach to class 10, that time you're gonna find polynomials in two variables. Okay, so अभी के लिए polynomials in one variable है. class 10 में 3 और 2 3 हम लोग देख पाएंगे, तो this not required. So we gonna do polynomials in only one variable. So algebraic expression also you have understood. So we're gonna come here with the types of polynomials. Firstly, let's categorize in two parts. Polynomials are categorized in two parts. First with the terms, another with the degree. Okay, polynomials को दो भाग में बांटा गया है. एक होता है टर्म से, एक होता है डिग्री से. वेट चेक कर दो वीडियो. ओके, हाँ, टर्म से polynomials होता है if the number of terms are only one term है, so that will be monomial. what it will be? अगर टर्म 1 है तो वो होगा monomial. एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 6 5x इस तरह से. so this is my monomial. okay, so if the term is 2, if two term is there like 2x plus 5, 2x square plus 6, in that way, right? Yeah, x cube plus x. so these is monomial binomial. if we have three terms,
if you have 3 terms, square plus 2x minus 3 is 6x square cube plus 2x square plus 6x. When we have 3 terms, that time it will be trinomials. उस टाइम ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स होगा. हमारे बुक में इतना 3 ही दिया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स. Okay, on the basis of terms, but when we come on the basis of degree, that time we need to understand degree is very much important. वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं. इफ वेरिएबल्स हैविंग ओनली 1 डिग्री, यहाँ पर टर्म्स डजेंट मैटर, ओके, पर डिग्री मैटर करता है. इफ इट इज़ ओनली लाइक दिस, you can see over here, degree of this variable is only 1, so that's why it is called linear equation, linear polynomial. It is linear polynomial, इसको बोलते हैं linear polynomial. Like इसको मिल जाता है 2x plus 5, this also linear polynomial. वो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, that will be ax plus b is the general formula of linear polynomial having degree 1. डिग्री कितना है, 1 डिग्री. when the degree is 2, when the degree will be 2, that time it will be quadratic polynomial. इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, 5 और 6. ठीक है, यहाँ पर टर्म्स मत देखना, डिग्री देखना. इस डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस quadratic equation, sorry, quadratic polynomial. So when the degree is 3, that time it will be cubic. When degree is 3, it will be cubic. So cubic का कोई भी फॉर्मूला लेते, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये क्यूबिक हो गया. या ओनली x क्यूब लिख दिया, दैट इज ऑल्सो माई पॉलिनोमियल. ओके, और पॉलिनोमियल, बट इसको 3 वाला डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पर भी कितना, हाईएस्ट डिग्री इतना. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल पर क्यूबिक. This is my cubic polynomials. I believe you have understood up to here. So now we can see another polynomial, another 2 or more polynomials, that is constant polynomial and zero polynomial. Constant का मतलब क्या था, हम लोग ने अभी आगे देखा. Like मैंने यहाँ पर लिखा 2, 1 2 pi root 2 6 minus 1 by 2. So all of these are constant number. But one thing you understand here, यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिया है, एक्सेप्ट 0. मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद. और यहाँ पर बाकी सब नंबर को लिया है एक्सेप्ट 0 को छोड़ के. सो इस तरह का नंबर, इस तरह का पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. और इसका डिग्री ढूंढना है, अगर इसका डिग्री ढूंढना है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, उस टाइम में हमको देखना पड़ेगा. अगर इफ आई एम टेकिंग 1, इफ आई एम टेकिंग पाई, इफ आई एम टेकिंग रूट 2, अब इसका डिग्री कितना होगा. तो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 ना. x टू द पावर 0 की मतलब 1 है ना, राइट. तो सेम ही आ जाएगा. तो इसका डिग्री, इसका पाई x टू द पावर 0 रूट 2 x टू द पावर 0. तो इसका मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला क्वेश्चन में. सो व्हाट विल बी डिग्री, डिग्री विल ऑलवेज 0. डिग्री हमेशा ही 0 होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का. ठीक है, बट हम लोग ने 0 क्यों नहीं लिया, वाई 0 इज़ नॉट टेकन. अगर हम लोग 0 को भी ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा देखिए. अगर 0 को लेता हूँ मैं, 0 को भी ले लिया, 3 0 ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए. अब फर्स्ट 0 में 0 इंटू एक्स टू पावर 0 कर दिया, 0 इंटू एक्स टू पावर 1 किया, 0 इंटू एक्स टू पावर 2 किया, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 का मतलब 1 ही होगा. 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर विल बी 0 ना. तो ये 0 में भी आंसर 0 ही आ रहा है, ये इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है. नॉट जस्ट दैट, यहाँ पर डिग्री देखिए,
ये जीरो में डिग्री 1 जीरो आ रहा है, ये जीरो में डिग्री 1 आ रहा है, ये जीरो में डिग्री 2 आ रहा है, समथिंग जीरो में 3 आ जाएगा, समथिंग जीरो में 4 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। क्या मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है? मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो बोल दिया तो क्या बोलूँगा मैं, राइट? आई कैन नॉट टेल ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो का डिग्री वी आर नॉट बीइंग एबल टू डिफाइंड। सो दैट्स वाई इसके लिए हम लोग कहाँ पर लिए, इसको लेके आए जीरो पॉलिनोमियल्स में लेके आए। सो जीरो पॉलिनोमियल्स में हम लोग देख पाते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल्स is that polynomial is only having zero but उसका डिग्री is not defined, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो है, बट जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री is not defined. So now another topic we have, that is the value of polynomials. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, इसमें मैं x का जो भी वैल्यू डालूंगा, अगर x 1 डाला तो क्या वैल्यू होगा पॉलिनोमियल का, अगर x में ये वाला में अगर मैं -1 डालूंगा, व्हाट विल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज़ द ओके। ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। अगर मैं ये px वेरिएबल x² प्लस 2x प्लस 5 में अगर x की जगह में मैं -1 डालता हूँ तो क्या होगा आंसर, -1 होल स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 5। तो वी नो दैट इस तरह से अगर कोई भी इवन नंबर आएगा तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर यहाँ पर बाहर में ऑड हुआ तो मेरा आंसर हमेशा माइनस में आएगा, राइट? सो यहाँ पर ऑलरेडी -1 था पर बाहर में इवन था, तो ये वाला पूरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। एंड ये वाला प्लस इंटू माइनस -2 प्लस 5। सो व्हाट इज द आंसर, 6 - 2 इज इक्वल्स टू, मेरा आंसर इज 4। वी हैव आंसर 4 हियर, राइट? अब इसमें चेक करते हैं, अब चेक करते हैं 1 में, 1 इज इक्वल्स टू, इसमें चेक करते हैं तो इसमें आंसर क्या होगा। सो नाउ हियर वी गोना सी इन द वैल्यू p1 में 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, here 1 into 1 square 1, 2 into 1 plus 5, that means what is value in value of the polynomial at x equals to 1, 5, 6, 7, 8. This is my answer. So see this this is how we find the value of polynomial at different values. So now here we have another topic that is the zeros, root and solution of the polynomials. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक अगर मैं x के जगह में एक ऐसा वैल्यू डालूँ जिस वैल्यू डालने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर हो पाया x का ऐसा वैल्यू डालने के बाद ये एक्सप्रेशन अगर जीरो हुआ तो ये जो वैल्यू होगा दैट विल बी द जीरो, रूट और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तीन का मतलब ही सेम है, जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन बोले या रूट ऑफ द सॉल्यूशन या सॉरी सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोला गया, तीनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर x के वैल्यू क्या डालूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू डू हियर 2x प्लस 1 को हम लोग क्या माने, जीरो माने, क्योंकि मैं x के वैल्यू निकालना है। 2x इज इक्वल्स टू -1, सो x इज इक्वल्स टू कितना, -1/2। अगर ये वैल्यू यहाँ पर डालें हम लोग p -1/2 डाले, ये एक्सप्रेशन में अगर हम लोग गए, अगर इसमें जीरो आ गया तो दिस विल बी द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, सो 2 कट हो गया, -1 प्लस 1, दैट मीन्स जीरो। सो what have you understood is that the root of the solution, therefore the root of the polynomial what px 2x plus 1 is -1/2. So this is the root of this polynomial, क्योंकि ये वैल्यू डालने के बाद क्या हो गया, मेरा आंसर जीरो आया। इफ़ आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। like in place of this I've given like 4x minus 3. so अब x के वैल्यू क्या डालूँ कि मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए या मेरा रूट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 4x minus 3 को जीरो करना है, 4x is equals to 3, तो x is equal to कितना है, 3/4. when you put this value over here the expression will be 0, that means this is the root of the given polynomial. So now here we're gonna start with another topic, that means I need to find the remainder, find the remainder of the polynomial using
लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये पॉलिनोमियल को अगर अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पर ये करना पड़ेगा मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे करते देखिए, ओके। और x-2 से मैं किसको डिवाइड कर रहा हूँ, 3x³ + 4x² - 8x + 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिससे क्या हो, ये नंबर आए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 3x² करता हूँ। 3x², x कितना हो, 3x³। अब ये 2 3 + 6 - 6x²। ओके, और ये नीचे का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। नीचे का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। सो ये कट कैंसिल, सो हियर 10x²। और ये नीचे आएगा, दैट मीन्स इट विल बी -8x। ओके, सो अब 10x² लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं, +10x। 10x मीन्स 10x², -1 + -20x। So this is cancelled. So I have got, this will be positive, right? So ये क्या होगा, 12x + 5। Now यहाँ पर क्या डालूँ कि 12x हो जाए, तो मुझे +12 करना पड़ेगा। +12 तो 12x आ गया, वो 2 12 -24, राइट। सो हेयर ये वैल्यू क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। सो दैट मीन्स कितना होगा मेरा, 29। सो दैट 29 इज माई रिमाइंडर। 29 क्या हुआ मेरा, रिमाइंडर आंसर आ गया। ओके, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड। इस तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं जब एक पॉलिनोमियल्स को दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है। सो नाउ सो दिस इज अनदर टॉपिक जहाँ पर हम लोग फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, दैट इज 3x³ + 4x² - 8x + 5 को मैंने डिवाइड किया था x-2 से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था। उस टाइम हम लोग का रिमाइंडर आया था 29, ठीक है। बट हम लोग ने जो डिवाइड किया था दैट वी डिड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग ने किया था, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये इसको हम लोग ये थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हैं, वो भी जल्दी से, विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेटिव मेथड से, इजी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, तो व्हाट यू विल से, ठीक है। तो ये 29 को अब हम किस तरह से निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे, जिसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विद द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम बोलता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट if p polynomial is divided by another polynomial, like for example x minus a, then अगर कोई polynomial px is being divided by x minus a होता है, then p of a equals to remainder। इसका मतलब अगर ये पॉलिनोमियल px को अगर x माइनस a से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब अगर मैं x माइनस a को 0 मान लूँ और x का वैल्यू a, ये a वैल्यू यहाँ पर डालूँ, तो ये a का वैल्यू डालने के बाद ये एक्सप्रेशन में x माइनस a का वैल्यू ये एक्सप्रेशन में अगर मैं डालूँ, तो जो आंसर आएगा दैट इज़ व्हाट माई रिमाइंडर। सो अभी हम लोग को क्वेश्चन क्या था, लाइक 3x², सॉरी 3x³ 4x² - 8x + 5, सॉरी 8x + 5। अब इस ये वाला एक्सप्रेशन है मेरा px पॉलिनोमियल वेरिएबल x ना, अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हैं, राइट, हियर ओके, सिंपली डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय x minus a, okay, is a, sorry x minus 2, okay, here x minus 2 equals to 0, x equals to 2, so
p इक्वल टू 2 अगर हम लोग डालेंगे 3x क्यूब प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5. If we'll do like this, that means 3 into 8 plus 4 into 4 minus 8 into 2 plus 5, right? So 24 plus 16 minus 16 plus 5. So this is cancelled. The 24 plus 5 is equals to 9. So see, sorry, 29. So see, here we have got the remainder, the same remainder we had got by long division method. तो फिर से मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम में क्या हुआ. रिमाइंडर थ्योरम में जब पॉलिनोमियल को अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, अगर वो पॉलिनोमियल को हम लोग, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू, ये वाला वैल्यू को अगर हम लोग ये पॉलिनोमियल में डालेंगे, सो दैट टाइम वी विल गेट द रिमाइंडर. दैट इज़ द कंप्लीट लॉजिक ऑफ दिस टॉपिक. इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम. ओके, सो you try solving some other problems also. बाकी लाइक इस तरह का प्रॉब्लम आप ट्राई करिए. 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 when divided by x minus, excuse me, 2. लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करिए एंड फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके भी इसको सॉल्व करिए. ओके, so now we have another topic that is very much important, that is factor theorem. क्या है हमारा another topic, that is factor theorem. और factor theorem में क्या होता है, if x minus a is a factor of px, अगर ये x माइनस ए अगर इसका फैक्टर हुआ, कि इसका फैक्टर पी एक्स का फैक्टर हुआ, आगे हम लोग ने किया था अभी, फैक्टर होने के लिए ये वाला वैल्यू अगर यहाँ पर डालेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. अगर जीरो आया तब जाके फैक्टर बनेगा ना. सेम थिंग है यहाँ पर. इफ़ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन क्या होना चाहिए, p का जो वैल्यू होगा दैट मस्ट कम जीरो. तो यही है मेरा फैक्टर थ्योरम. x माइनस ए का वैल्यू डालने के बाद मेरा पूरा एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. तभी जाके ये वाला क्या होगा मेरा, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पॉलिनोमियल वेरिएबल x. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, लाइक एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. चेक करते हैं कैसे करना है. सिंपल, हियर x plus 2 इक्वल टू 0 किया, डायरेक्टली कर रहा हूँ. h इक्वल टू -2. सो ये वाला पॉलिनोमियल में जाएगा ना, p -2 इक्वल्स टू -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6. वी नो दैट इज ऑड वैल्यू विल बी नेगेटिव, प्लस इवन वैल्यू विल बी पॉजिटिव. 3 into 4 minus plus minus 10 plus 6. Okay, so -8 12 minus 10 plus 6, so it will be 4 here minus 10 plus 6. 6 plus 4 10 minus 10. So see, we have got the value 0. That means it means that x plus 2 is a factor of this polynomial. How did we solve? We solve in this manner. Okay, so ये होता है factor theorem. I believe you have understood. Okay, I believe you have understood. ये वैल्यू डालने के बाद मेरा पॉलिनोमियल में ये वाला वैल्यू डालने के बाद जीरो होना चाहिए. ठीक है, पर रिमाइंडर थ्योरम में क्या हो रहा था, रिमाइंडर थ्योरम में अगर पॉलिनोमियल पी एक्स इज बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तब जाके एक्स का वैल्यू अगर हम लोग पॉलिनोमियल में डालते थे तब जाके मेरा आंसर रिमाइंडर आता था, राइट. पर इसमें वो वाला वैल्यू डाल के अगर जीरो आना पड़ेगा तब जाके वो फैक्टर होगा.
पर यहाँ पर वो वाला वैल्यू डालने के बाद मेरा रिमेन आता था. That was the difference. That is the difference between these two theorem. I believe you have understood. So students, this is another topic, factorization of polymers using factor theorem. पर ये चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम, मिडिल टर्म ब्रेकिंग एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग करेंगे ये 3 टॉपिक. सो अनदर वीडियो में वी गोना कंप्लीट होल दिस पॉलिनोमियल्स. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. And if you have liked my teaching method, or if you find these lessons helpful, so you can write your opinion in the comment section, and do like and subscribe this channel. Thank you.